Hello, very good morning, everyone. I'm Raman Tripuri, ugcnet and Maharashtra State qualified candidate, presently serving at Mumbai University as assistant professor. So today we'll be discussing a topic called international trade, and we'll be going through the different trade theories given by different scientists and different era. So let's understand what is international trade. What I mean, so I guess the screen is visible to everyone. So let's understand what is international trade. In layman term, international trade is a trade between two different nations. Right? As name suggests, international between two nations. Between two nations. International trade is a nation. It's a trade between two different nations. It could be related to multi-level different nations as well. ऐसा ही ना हो कि सिर्फ दो देशों के बीच में. It could be into एक देश का कई सारे देशों के साथ जो होता है trade. It is not international trade. ठीक है. So as per the definition given by GATT, international trade is the exchange of goods, services, capital across international border. तो मार्क पर ये थोड़ा सा डेफिनेशन को समझते हैं ना. As name suggests, it is between the two nations. It is between the two borders of nation in which multiple currencies are involved. Lot of documentation is involved, right? So, in simple word, international trade is the exchange of goods and services, capital across international border or territories because there's a need or a want of goods or services, which involves multiple currencies. Please make sure when we talk about international trade, we're talking about multiple currencies. ठीक है. ठीक है, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड में हम अगर समझे तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स, मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आप उसको समझ सकते हैं या फिर आप इसको खुद के भाषा में भी लिख सकते हैं. ठीक है. इन्वॉल्व्स मल्टीपल करेंसीज, ठीक है, एंड लॉट ऑफ पेपर वर्क. अब सेकंड पॉइंट समझते हैं. अब इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात की तो लेट्स टॉक अबाउट इंटर रीजनल ट्रेड. ठीक है. इंटर रीजनल ट्रेड इज ट्रेड इन व्हिच इज यूजुअली हैपेंस विद इन अ नेशन. ठीक है. इंटर रीजनल ट्रेड हैपेंस विद इन अ नेशन. फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया कि हम लोगों ने महाराष्ट्र से कुछ प्रोडक्ट लिया, तमिलनाडु भेजा, तमिलनाडु से कुछ प्रोडक्ट लिया महाराष्ट्र में. दिस इज इंटर रीजनल ट्रेड. The good side of inter-regional trade is that you don't involve multiple currencies here. Only one currency is involved. And this paperwork. अगर किसी ने आपसे पूछा कि सर आप मुझे बताइए what is the difference between international trade and inter-regional trade. So this is the difference basically. ठीक है. So let's, I hope this international trade और inter-regional trade में क्या difference आपको clear. ठीक है. अब let's understand what are the different type of trades usually happens when you talk about international trade. ठीक है. अब हम बात करेंगे सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, क्योंकि ये हमारा टॉपिक जो है बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस का है. यूजीसी नेट का चैप्टर नंबर 10 का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. तो इंटरनेशनल ट्रेड की जब बात करते हैं उसमें तीन टाइप का ट्रेड आता है ना. ये आता है इम्पोर्ट. ठीक है. बी इज, I hope these terms are very clear to everyone. Import is something when any particular country buys any product from different country which is not available in its country. इसका मतलब थोड़ा इंग्लिश इधर ट्रिकल लगे. लेट मी टेल यू, लेट्स अंडरस्टैंड इन हिंदी. अगर इंडिया के पास तेल नहीं है, पेट्रोल भी, हमारे पास पेट्रोल का बहुत ज्यादा खजाना है. सो व्हाट वी डू, हम लोग पेट्रोल को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम साउथ अरेबियन कंट्रीज, राइट, फ्रॉम सीरिया, फ्रॉम साउथ, from United States of America, UAE, right? तो import and export is like कि हम लोग हमारे देश से दूसरे देश को भेज रहे हैं. Like हम लोग हमारे यहाँ से ज्वेलरी भेजते हैं बाकी अमेरिकन कंट्रीज में, स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते हैं, राइस एक्सपोर्ट करते हैं. सो दिस इज इम्पोर्ट. इम्पोर्ट इज समथिंग कि हम लोग अपने रिजर्व में से पैसे देके कुछ चीजें बाहर के देश से खरीदते हैं. एंड एक्सपोर्ट इज समथिंग कि हमारे पास का जो एक्स्ट्रा स्टॉक्स है कुछ प्रोडक्ट्स का, वो हम दूसरे देश को दे रहे हैं और उनसे उनकी फॉरेन करेंसी ले रहे हैं. ठीक है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज क्लियर. थर्ड पार्ट, sorry, which is not very commonly known, but as the level has gone up from last exam by UGC to this exam, UGC had itself. So this is a new term called entry pot trade. Entry pot trade. So what is the entry pot trade? आप थोड़ा समझते हैं. Entry pot trade is something
कि जहां से वी आर नॉट द प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट, वी आर नॉट द प्रोड्यूसर ऑफ गुड, ठीक है। एज अ कंट्री हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, इंडिया थाईलैंड से रबर इम्पोर्ट करता है, इंडिया थाईलैंड से रबर इम्पोर्ट करता है, उस पर प्रोसेस करता है, और वही रबर को प्रोसेस करने के बाद जापान को बेचता है। दिस इज इंटरपोर्ट, वी आर वर्किंग एज अ मीडियोकर हियर, है ना। शायद थाईलैंड थाईलैंड के पास वो प्रोसेस नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो लोग इस प्रोडक्ट को प्रोसेस करता है। सो दिस इज कॉल्ड इंटरपोर्टेड। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल याद रख लीजिए, इंडिया इंपोर्ट्स रबर फ्रॉम थाईलैंड, प्रोसेस इट एंड री एक्सपोर्ट इट टू द अनदर कंट्री फॉर जापान। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। एंड दिस इज, इसका दूसरा फायदा भी होता है इंटरपोर्टेड के, कि इट अवॉइड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, ट्रांसशिपमेंट भी हो सकता है ना। तो इसके दो फायदे हैं। सो आई होप दिस इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट ट्रेड इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। इसके बाद विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट ट्रेड थ्योरीज गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, और जो पुराने जमाने से यूज आती है। उसके पहले एक टर्म मैं आपको बताना चाहता हूँ, autarky. This last time this question was there in UGC net and West Bengal set as well. What is autarky? Or the definition was given, and you need to define it. Autarky. What is autarky? So let's understand what is autarky. Autarky is a process a country has in which it is not involved in either export, neither involved in import. भाई साहब, ऐसी कंट्री, ऐसा सिचुएशन, ऐसी इकोनॉमी जो देश की जिसकी वजह से ना देश एक्सपोर्ट सकता है ना इंपोर्ट कर सकता है, जिसको हम लेक्स लैंग्वेज में क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, वो भी वी कॉल इट एज क्लोज्ड इकोनॉमी। दिस इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमी इन व्हिच द कंट्री इकोनॉमी इज neither able to situation where the country does not even import or not neither even export it, ठीक है। This is for just example, let's consider two countries here, India and US, ठीक है। ये दो कंट्री में कोई कोई ट्रेड नहीं है, नो ट्रेड बिटवीन दीज, नो ट्रेड बिटवीन in these two countries, and neither they are having neither they are having any trade relation with any other country. So this is a form of closed economy, okay? This is autarky. I hope this autarky term is very much clear to everyone. So uske baad the very common topic in which through which usually questions do find are the different trade theories. So let's discuss about mercantile theory. Mercantile theory, ठीक है। mercantile theory कहता क्या है? It is a kind of selfish theory. Let me tell you. You can, आप लोग उसको समझने के लिए थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हो, selfish theory. What it states? ये कहता है कि you should only export, you should not import. A country should only export, it should not import. Why it should not import? And why should it export? Export जब करेगा country, what will they? They will earn specie. Specie means metal. पहले जमाने में where there was no currencies, तब transaction होता था metal के जरिए, ठीक है। So mercantile theories focuses on import minimum, export maximum, जिससे क्या हो, आप लोग स्पीसी गेन कर सकते हो, ठीक है। प्रीसीज मेटल, स्पीसी मतलब प्रीसी मेटल, तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है मर्केंटाइल थ्योरी का, ठीक है। बट एट दैट एज नाउ द टाइम हैज चेंज, करेंसीज आर डेवलप्ड। ये तब यूज करता जब देयर वर नो करेंसीज इन द कंट्री, और जब ट्रांजैक्शन ऐसी होती थी कि भाई साहब, आई विल गिव यू दिस प्रोडक्ट, यू विल हैव टू गिव अस दिस अमाउंट ऑफ गोल्ड मेटल और प्लेटिनम मेटल, जो स्पीसी मेटल थे, महंगे जो होते हैं उनसे हम करते हैं, ठीक है। सो दिस इज मर्केंटाइल थ्योरी which was given in 1700 century. Let me tell you, by 1700 century बारे में आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, you need to just have this clarity what is mercantile theory. आप सिंपल रखो, it is a selfish theory in which a country, this theory states that a country should export as many as possible but should not import. मतलब भाई साहब एक्सपोर्ट करते जाओ और बाहर के देशों से सोना चांदी जो स्पीसी के फॉर्म में आता है वो देश में लिया जाए, तो खुद के पास से कुछ बाहर जाना चाहिए। This is like a zero sum game. Zero sum game means zero sum game मतलब क्या? Means one country will win when second country will lose.
दोनों कंट्री कभी जीत नहीं सकते। सेकंड कंट्री को जरूरत है चीजों की, प्रोडक्ट की, तो वो अपने स्पीसीज देने वाले फर्स्ट कंट्री को। सो दिस इज जीरो सम गेम. Now, the fault part is this. I told you that specie was a part because that time the it was not the possible as the currencies were not available. ठीक है. और the currencies were not available, or usually the developed countries used to underdeveloped countries को पूरा hamper exploit करते थे. This is what exactly happened to Indians. ठीक है. So mercantile theory इसमें 3 पॉइंट आ जाते हैं कि export maximum so as to one species, import minimum. ठीक है. import minimum कैसे करोगे? हाउ टू मिनिमम इनपुट टैरिफ लगा दो, सॉरी टैरिफ लगा दो, इम्पोज करो, इम्पोज ड्यूटी ऑन दैट. दिस इज द बेस्ट वे. ठीक है. सो दिस इज मर्केंटाइल थिंग. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. दैट टाइम भी डब्ल्यूटीओ वाज देयर, लेट मी टेल यू मर्केंटाइल थिंग. बट कुछ कंट्रीज थी बिकॉज वी टू कुछ एक्स्ट्रा पावर होता था, लाइक दिस अमेरिका, जो सोचता था कि भाई साहब नहीं, वी विल नॉट लिसन टू द डब्ल्यूटीओ, व्हाट वी विल डू व्हाटएवर वी वांट. सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, मर्केंटाइल थ्योरी इसके 4 पॉइंट याद रखेंगे. इट इज अ सेल्फिश थिंग. It focuses on maximum export, minimum import. To maximum import, we will gain precious metal known as PC. Specie. Third point, mercantile theory is about zero sum game. Both the parties cannot win. Zero sum game means what? One party will win, the other will have to lose. This is very simple. Okay, so mercantile theory is a kind of selfish theory. Okay, so let's move to the second topic. So let me tell you, let's before moving to another topic, zero sum game. Zero sum game is a property of mercantile theory, जो बाकी theories में applicable नहीं. Let me tell you, this is very. So let's move to the next one. I hope this screen is visible to everyone. Next theory is absolute advantage theory. Let me tell you, whatever we are discussing the theories right now are the part of classical old theories. We'll be discussing, I'll be coming up with a new video on new theories as well. So let's discuss about absolute advantage theory. ठीक है. Absolute advantage theory. Let me tell you, हमने इसके पहले भी बात की थी कि पहले इसमें जो mercantile theory वो zero sum game. इसमें है कि this is mutually beneficial to both the countries. Mutually beneficial. जिस तरह mercantile theory was zero sum game, एक कंट्री जीतेगा तभी दूसरा कंट्री हारेगा. So this is not like this. This is mutually beneficial. अब ये theory कहता क्या? Let's see. And very important factor, the question यहाँ पे आता है कि absolute advantage theory दी किसने? तो it was given by Adam Smith. Absolute advantage theory given by Adam Smith. Mutually beneficial मैंने पहली बात बोल दी. Secondly, absolute advantage theory states that a country must produce that product. A country must produce that product in which it has superiority. जो प्रोडक्ट कंट्री को ऐसा ही प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिसमें उसको सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी पे सुपीरियरिटी हो. राइट. फॉर एग्जांपल कि अगर एक कंट्री इंडिया और यूएस है, ठीक है, अगर इंडिया को 2 आवर्स लगते हैं कोई प्रोडक्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट राइस बनाने के लिए, और उतना ही राइस बनाने के लिए अमेरिका को 10 आवर्स लगते हैं. इट मीन्स व्हाट? इंडिया इज मोर प्रोडक्टिव देन यूएसए. राइट. समझ रहे हो? जस्ट इमेजिन कि 10 किलो चावल बनाने के लिए भारत को 2 घंटे समय लगता है, अमेरिका को 10 घंटे समय लगता है. Who should produce rice? India should produce it because India के पास absolute advantage है. India has that power. India has that resources in able कि जिससे हम वो राइस को ज्यादा प्रोड्यूस कर सके. So India must produce that product in which it has absolute advantage. ठीक है. इसको समझने का थोड़ा सा अलग तरीका है. लेट्स आई एम ड्राइंग थोड़ा सा एक एग्जांपल साथ ये करते हैं. मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है. दिस मेश, दिस इज अ कंट्री. दिस इज, लेट्स टेक 2 प्रोडक्ट, राइस एंड व्हीट. कंट्री में लेते हैं यूएसए और इंडिया.
ठीक है, आप समझते हैं कि राइस राइस बनाने के लिए, एक यूनिट राइस बनाने के लिए चलो 10 केजी लगती है, 10 केजी यूनिट पकड़ लीजिए, 10 केजी बनाने के लिए यूएस को लग रहा है 10 आवर्स, इंडिया को लग रहा है 2 आवर्स। ठीक है, तो हु शुड प्रोड्यूस राइस एज पर एडवांटेज थ्योरी? इंडिया मस्ट प्रोड्यूस राइस बिकॉज वो कम समय लग रहा है, इसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इंडिया शुड प्रोड्यूस, बट वीट में जब देखते हैं, वीट का भी सेम रखते हैं 10 केजी। ठीक है, अब यूएस को लग रहा है 5 आवर्स और इंडिया को लग रहा है 20 आवर्स, तो हु शुड प्रोड्यूस? हु शुड प्रोड्यूस दिस? ऑफ कोर्स यूएस मस्ट प्रोड्यूस दिस because it's just time come and they both the countries India and USA must have this trade between them. So India will produce, India will provide the rice to US, whereas US will provide the wheat to India. ठीक है, I hope this is clear. ठीक है, so this is very easy example of absolute advantage कि वही प्रोडक्ट हम लोग को बनाना चाहिए जिसमें हमें absolute advantage है। अब देखो absolute advantage थ्योरी का एक कुछ साइड फैक्टर्स भी है जो कंसीडर करता है कि सिर्फ कंसीडर लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये बोलता है कि लेबर इज ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है समझते पहले तो। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि भाई साहब अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो क्या सिर्फ लेबर ही इंपॉर्टेंट होने वाला है? लाइक जस्ट इमेजिन करते थे राइस बना रहे हैं एज ए इंडिया कंट्री, तो सिर्फ लेबर से काम होने वाला है? मशीनरीज लगेगी, कैपिटल लगेगा, खेत जोतना है, ट्रैक्टर्स लाना है, सो एवरीथिंग गोइंग टू मनी इज गोइंग टू फैक्टर, लेबर इज गोइंग टू फैक्टर, टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू फैक्टर। बट ये थ्योरी कहता है कि लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, तो इसके पहले बार हमने डिस्कस किया मर्केंटाइल थ्योरी, उसके बाद हमने एक्चुअल एडवांटेज थ्योरी बात की, एडम स्मिथ ने दी है, जो म्यूचुअली बेनिफिशियल है। अनलाइक मर्केंटाइल थ्योरी विच वाज जीरो सम गेम, दिस इज अ म्यूचुअल बेनिफिशियल, यहाँ पे दोनों कंट्री को फायदा हो रहा है। इंडिया भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर पा रही है, वही अमेरिका भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही है, और थ्रू इंटर ट्रेड दे आर हैविंग different denomination of currencies they are exchanging amongst each other, right? So according to absolute advantage theory, as India has absolute advantage producing in rice, India must produce rice and America must produce wheat, and they must have a trade in between them. Okay, so India should export rice and import wheat from us America, right? This is clear? ओके, अब इसके बाद एक फिर प्रॉब्लम, आप कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि सर अगर जस्ट इमेजिन कि अगर दोनों इसमें इंडिया बेहतर है, तो हम राइस भी प्रोड्यूस अच्छे से कर रहे हैं, वीट भी अच्छे से प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन दैट केस सो दिस वाज द सेम प्रॉब्लम फेस्ड बाय द साइंटिस्ट एंड द न्यू थ्योरी केम टू माइंड वाज कंपैरेटिव थ्योरी एडवांटेज। ठीक है, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। कंपैरेटिव थ्योरी स्टेट्स दैट, चलो अब कंपैरेटिव थ्योरी हमारे रिकार्डो बाबा ने दी है। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है, डेविड रिकार्डो, इट वाज गिवन बाय डेविड रिकार्डो। So let's understand, it was given by, and the second, and the same thing is with this theory as well, the factor of production which they have considered is the labor। ठीक है, यहाँ ये भी इसका पॉइंट है। अब फिर से वही ब्लॉक हम बनाते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय एग्जांपल। अब ये कहता है कि अगर आप दोनों इसमें सही बेहतर है, तो आपने वही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें आप ज्यादा बेहतर। गेटिंग माय पॉइंट? अब थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। लेट्स टेक द सेम एग्जांपल, यहाँ पे था यूएसए, यहाँ पे था इंडिया, यहाँ पे था राइस, यहाँ था व्हीट। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन कि हमें हमें यूएसए को लग रहा था राइस बनाने के लिए 10 केजी राइस बनाने के 10 आवर्स, इंडिया को कितना लग रहा था? 2 आवर्स। ठीक है, व्हीट बनाने में व्हीट बनाने में यूएसए को लग रहा है 20, और मैं यहाँ पे चेंज करूँ, देखो इंडिया को लग रहे हैं 5 घंटे। अभी एज पर दी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी यू विल से कि सर इंडिया ने तो इंडिया ने ही राइस बनाना चाहिए, इंडिया ने भी बनाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि इनको 10 घंटे लग रहे हैं, इनको 20 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे और 2 घंटे बनाते हैं। नो, हम ऐसा करेंगे क्या होगा, ट्रेड के चांसेस अमेरिका के पास बिल्कुल नहीं रहेंगे, सिर्फ इंडिया ही करेगा, अमेरिका के पास कुछ फॉरेन करेंसी उनके पास रिजर्व में नहीं है। सो इन दिस केस पहले से समझते क्या करेंगे, इन जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस बिग पार्ट,
फोकस ऑन राइस पार्ट। देखो यूएस को लग रहा है 10 kg बनाने के लिए 10 घंटे, इंडिया को लग रहा है 2 घंटे। विच इज बेटर वन? हु शुड प्रोड्यूस राइस? इंडिया शुड प्रोड्यूस, ठीक है, इंडिया शुड प्रोड्यूस राइस, ठीक है। अब नाउ कंसिडर, अब वीट में कैसे, वीट में हु शुड प्रोड्यूस? अगर इंडिया। अब तो प्रॉब्लम होगा कि यूएस को भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। सो इन दिस केस व्हाट विल वी डू, व्हाट इंडिया शुड डू? अभी यहाँ पे देखो, एज कंपेयर टू यूएसए, इंडिया इज 5 times मोर प्रोडक्टिव। कैन यू सी दिस? इनको 10 घंटे इनको 5 ही घंटे लग रहे हैं। इंडिया इज 5 times मोर प्रोडक्टिव देन यूएसए व्हेन वी टॉक अबाउट राइस। व्हेन वी टॉक अबाउट व्हीट, इंडिया इज 4 times मोर प्रोडक्टिव देन यूएसए। So किसमें ज्यादा प्रोडक्टिव? इफ वी कंपेयर बिटवीन राइस एंड व्हीट, इंडिया के लिए राइट, इंडिया इन विच प्रोडक्ट इंडिया इज मच बेटर इन प्रोड्यूसिंग, राइस और व्हीट? ऑफ कोर्स राइस, बिकॉज ये 5 गुना ये 4 गुना है। सो व्हाट शुड डू इंडिया? इंडिया शुड प्रोड्यूस राइस and export it to America, and America should produce wheat and export it to India, and there should be, this is example comparative advantage, ठीक है। इसमें हमने एक ही देश को कंपेयर किया, राइस और व्हीट में, इंडिया को किया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव थ्योरी, ठीक है। सो फ्रॉम दिस थ्योरी वी कैन से दैट to India must degree of absolute higher, ठीक है, degree of absolute advantage. In other term, we can say that degree of absolute advantage is higher when we talk about rice as compared to wheat, because 5 times है, ये 4 times है, ठीक है। ये हो गया comparative advantage theory, comparative advantage theory से कहते हैं। I hope this is clear. इसके बाद एक बाबा आए थे दूसरे, जिन्होंने एक फोर्थ theory was there, was Heckscher-Ohlin theory, है ना। Heckscher-Ohlin theory, इन्होंने Heckscher-Ohlin HO theory कहते हैं, ठीक है, theory, Heckscher-Ohlin theory, ठीक है। दिस theory, देखो इसमें सबसे पहले फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मर्केंटाइल सेल्फिश है, एब्सोल्यूट एडवांटेज। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि भाई साहब जिनसे फैक्टर प्रोडक्शन को लेबर लिया है, कंपैरेटिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से लेबर लिया है। Heckscher-Ohlin theory में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर भी लिया है और कैपिटल भी लिया है। इसी Heckscher-Ohlin को बहुत ज्यादा दिमाग था, उन्होंने थोड़ा सोचा कि भाई साहब सिर्फ लेबर से कैसे करेंगे, मशीन में पैसा तो लगेगा बनाने के लिए बिना इसके। हालांकि उसके अलावा भी बहुत सारे कुछ फैक्टर्स है विच आर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी, बट इन्होंने थोड़ा सोचा। सो Heckscher-Ohlin theory is also known as factor endowment theory, ठीक है, factor endowment, ठीक है। as it name suggests, let's understand what is factor endowment. Factor endowment, इसका हिंदी अनुवाद ऐसा होता है कि जो आपके पास ज्यादा एंडाउमेंट, अति, जो आपके पास ज्यादा है उसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के पास ज्यादा क्या है, लेबर है, तो हम ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो लेबर इंटेंसिव है। अमेरिका के पास ज्यादा पैसा है, तो ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो पैसा है, और दे शुड हैव दिस इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन देम। दिस इज फैक्टर एंडाउमेंट, जिस आपका जो फैक्टर ज्यादा है आप उसका इस्तेमाल करो, ठीक है। तो फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी इज आल्सो नोन एज फैक्टर प्राइस। अब देखो इसमें क्या हो गया, फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन। जो देश, क्योंकि अमेरिका के पास ज्यादा लेबर नहीं है, तो इंडिया के लेबर उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो एक इक्विलाइजेशन का हो रहा है आपको। इंडिया के लेबर को भी एक वैल्यू मिल रही है, फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन। और जो अमेरिका के पास कैपिटल्स गुड है, उनको एक मार्केट मिल रहा है इंडिया का, तो यहाँ पे दोनों फैक्टर्स को इक्वल करने की कोशिश की जा रही है, लेबर को और कैपिटल, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज Heckscher-Ohlin theory. दिस इज नोन एज फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी, बिकॉज ये कहती है कि आपका जो फैक्टर ज्यादा है आप उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। दिस इज, if for example India is into this labor specialization products, India can have a labor intensive product, America can have a this products of which involves capital intensive, right? I hope this is very much clear to everyone. इसी का हम फैक्टर प्राइस इक्वेशन, मतलब एक कंट्री जिनके पास लेबर नहीं है, उसके लिए कोई दूसरी कंट्री का लेबर अपने आप काम कर रहा है, उसके लिए हम पे कर रहे हैं, फैक्टर इक्वलाइजेशन हो रहा है ये, कि भाई साहब हमारे पास वो लेबर नहीं है बट वी विल पे फॉर योर लेबर, उनको अच्छा पे किया जाएगा और उनको उनके उनके जो मेहनत है उनको भी उनका पैसा मिलेगा। So this is a factor endowment and Heckscher-Ohlin theory. So these are some old classical theories which were given. I hope this must be clear. I'll be coming with a new video based on
न्यू ट्रेड थेरीज, ठीक है, जिसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे कि एज टाइम हैज ग्रोन एंड इंडस्ट्रियल एरा हैज बिगन, जहाँ पे नए नए प्रोडक्ट्स नई कंपनीज हैव ग्रोन अप, उनका तरीका भी चेंज हुआ है, देशों के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड हैपेंस, राइट? So this is a very important part. I hope I your doubt must be clear. These certain terms you must have. This international trade. What is international trade? What is interregional trade? What is autarky? और ये जो मैंने तीन आपको शॉर्ट में बताया, चार मर्केंटाइल थ्योरी, सेल्फिश थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, हेक्चर थ्योरी। आई होप सबको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, आई विल शेयर, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। थैंक यू।